Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। आज हम IAS Prelims 2023 में से CSAT के पेपर को एनालाइज करेंगे और हमारा मेन पॉइंट ऑफ फोकस होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शंस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। So this is one of the most important questions that was asked in this exam. First is food consumption patterns have changed substantially in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious food such as millets. While food grain production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crop grains. Indigenous मतलब not related to India. Indigenous मतलब खुद का traditional, उस जगह का अपना own. ठीक है, like that. So इंडिया का इंडिजिनस हो सकता है, किसी दूसरी कंट्री का या स्टेट का भी इंडिजिनस हो सकता है. Indigenous traditional crop grains, fruits and other vegetables, impacting food and nutrition security in the product process. Further, intensive monoculture agriculture. Monoculture मतलब आप एक लैंड में सिर्फ एक ही तरह का ग्रोथ कर रहे हो, मे बी सिर्फ राइस या फिर सिर्फ wheat, like that. Practices, intensive monoculture agricultural practices can perpetuate the food and nutrition security problem. उससे और बढ़ सकता है by degrading the quality of land. लैंड की क्वालिटी जब आप एक ही क्रॉप ग्रो करते हो वो खराब हो जाती है. ठीक है. Quality of land, water and food derived through them. Based on the above passage, the following assumptions have been made. क्या क्या और उनमें से कौन-कौन से सही हैं. So कौन-कौन से सही हैं वो देखना होगा. To implement the sustainable development goals. ये है SDG goals of the UN. And to achieve zero hunger goal, monoculture agricultural practices are inevitable even if they do not address malnutrition. यहाँ पे ना तो SDG के बारे में कुछ कहा गया है, ना जीरो हंगर गोल या कुछ भी कहा गया है. Although these are the assumptions. हम क्या assume कर सकते हैं? Monoculture agricultural practices are inevitable, मतलब आपको करना ही होगा even if they do not address malnutrition. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही होगा. हमने क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ा होगा, आप वो कर सकते हो. मतलब एक लैंड में एक सीजन में कुछ, दूसरे सीजन में कुछ, और इससे फूड की क्वालिटी और लैंड की क्वालिटी सब अच्छी रहती है. सो ये पॉइंट गलत है. अब यहाँ पे जहां जहां पे वन है वो सब गलत है. ये भी गलत है, ये भी गलत है. अब एग्जाम में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2, 3, 3 and 4, मतलब थर्ड पॉइंट इज करेक्ट. सो यू कैन स्किप रीडिंग द थर्ड पॉइंट एंड गो डायरेक्टली टू 4 and 3, 4 and 2. अंडरस्टूड. फॉर बट यहाँ पे हम लोग 3 को एड्रेस करेंगे समझने के लिए. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? Dependence on a few crops has negative consequences for human health and ecosystem. ये सही हो सकता है. Third is government policies regarding food planning need to incorporate nutritional security. Nutritional security के बारे में हमें सोचना होगा, ये तो सही है ही. For the present monoculture agricultural practices, farmers receive subsidies in various ways and governments offer remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity. ऐसा कोई assumption हम नहीं बना सकते हैं कि उनको मोनोकल्चर के लिए सब्सिडीज मिलता है. ऐसा हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट फिर गवर्नमेंट उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस भी देती है, ये नहीं होता है, ये गलत है. So 2 and 3 are correct. Answer B is the correct answer. Next slide. Elephants are landscape architects, creating clearings in the forest. मतलब forest को साफ करते हैं, कहीं कहीं पे साफ करने की जरूरत होती है. Preventing outgrowths of certain plant species and allowing space for the regeneration of others. मतलब जरूरत पड़ने पर
वो जिस हैबिट से क्लियर करते हैं, कुछ गलत जिनकी जरूरत नहीं होती है वो प्लांट स्पीशीज ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वहां पर दूसरे ग्रो कर सकते हैं, which in turn provide sustenance to other herbivorous animals. Elephants eat plants, fruits, and seeds, propagating their seeds when they defecate in other places as they travel. Defecate matlab excrete karna. Elephant dung provides nourishment to plants and animals and acts as a breeding ground for insects. In times of drought, matlab सूखे में, they access water by digging holes, which benefits other wildlife. वो holes भी dig कर सकते हैं या फिर channels create कर देते हैं जिसकी वजह से पानी available हो जाता है. Which one of the following statements best reflects the most logical and rational inference? यहाँ पे assumption नहीं है. Logical and rational inference that can be drawn from the passage. The home range of elephants needs to be a vast area of rich diversity. जहां पर एलिफेंट्स रहते हैं उस जगह को वास्ट एरिया ऑफ रिच डाइवर्सिटी होना ही होगा. ऐसा कोई assumption हम यहाँ से नहीं बना सकते. गलत. Elephants are the keystone species and they benefit the biodiversity. Keystone species मतलब जो वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं. ठीक है, इफेक्ट तो करते हैं. एक तो हमने देख लिया कि वो प्लांट को जो जरूरत नहीं है वो हटा देते हैं, दूसरे को ग्रो करने के लिए जगह देते हैं. ठीक है, ताकि दूसरे एनिमल्स वो दूसरा वाला प्लांट खा सके. फिर उनके डेफिकेशन की वजह से अच्छा नरिशमेंट मिल जाता है फ्रूट्स एंड को एंड प्लांट्स को. फिर वो लोग वाटर इनअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो ये पॉइंट राइट हो सकता है. दूसरे पॉइंट्स पढ़ने होंगे. Rich biodiversity cannot be maintained in the forests without the presence of elephants. ये पॉइंट हम नहीं बोल सकते कि एलिफेंट्स नहीं होंगे तो वहां पे हर फॉरेस्ट में तो एलिफेंट नहीं होता है, वहां पर भी तो डाइवर्सिटी होती है. राइट, सो ये पॉइंट गलत है. Elephants are capable of regenerating forests with species as per their requirement. वो अपने हिसाब से स्पीशीज को रीजनरेट कर सकते हैं फॉरेस्ट में, अपने हिसाब से. ये नहीं होता, वो अपने हिसाब से दे कैन नॉट कंट्रोल विलिंगली कि अब मैं चाहता हूँ ये वाला स्पीशीज हो वो वाला ना हो, ऐसा नहीं. तो ये पॉइंट भी गलत है. सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The last end of the state is not to dominate men, not to restrain them by fear. Rather, it is so to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor. ठीक है, ये सोशल इशू के ऊपर ये कॉम्प्रहेंशन दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है. मैन मतलब एनी ह्यूमन बीइंग, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे. हम उन्हें डराना नहीं चाहते. हमारा सिस्टम उन्हें डोमिनेट करने का नहीं होना चाहिए, उन्हें डराने का नहीं होना चाहिए, बल्कि हर इंसान फ्रीली सोचे, डर से फ्रीली होकर सोचे और वो जिए और एक्ट करे. उसके एक्शंस सही होने चाहिए विदाउट इंजरी टू हिमसेल्फ और हिज नेबर, किसी को हानि पहुंचाए बिना. द एंड ऑफ द स्टेट, आई रिपीट, is not to make rational beings मतलब human beings into brute beasts and machines. हम उन्हें फिजिकली भी एकदम मशीन की तरह नहीं करना चाहते कि वो सोचना ही बंद कर दे, सिर्फ काम करता रहे, उसमें से इमोशन चला जाए. It is to enable their bodies and their minds to function safely. It is to lead men to live by and to exercise a free reason, सही कारण, जिंदगी का सही मकसद, that they may not waste their strength in hatred, anger and guile. नफरत, गुस्से में और ग्लानि में वो अपना जीवन व्यतीत ना करे. Nor act unfairly to one another, ना ही वो किसी और के साथ गलत करे. Based on the above passage, which one of the following terms best expresses the ultimate goal of the state? Best expresses personal safety, health of body and mind, communal harmony, liberty. यहाँ पर liberty will be the answer. ये सारे पॉइंट्स हैं. पर्सनल सेफ्टी भी पॉइंट है, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड भी है. ठीक है,
ताकि वो दिमाग से और बॉडी से सब तरह से वो स्वस्थ रहे। कम्युनल हार्मनी भी है, बट मेन पॉइंट इज लिबर्टी। ये सब कुछ इस चीज से रेगुलेटेड होते हैं। ये सब कुछ उसकी लिबर्टी पे डिपेंड करता है। या तो आप उसे डोमिनेट करोगे, डोमिनेट करके भी आप ये सब कुछ मॉड्यूलेट कर सकते हो, या फिर उसको लिबर्टी दे करके भी आप ये सब कुछ मॉड्यूलेट कर सकते हो। सो लिबर्टी विल बी द राइट आंसर। साइंस by itself is not enough. There must be a force and discipline outside the sciences to coordinate them and point to a goal. It is not possible to run a course aright when the goal itself has not been rightly placed. What science needs is philosophy, the analysis of scientific method and the coordination of scientific purposes and results. Without this, any science must be superficial. Government suffers precisely like science for lack of philosophy. Philosophy bears to science the same relationship which statesmanship bears to politics. मतलब statesmanship मतलब जो politicians होते हैं उनके बारे में। Guided by total knowledge and perspective as against aimless and individual seeking. बेसिकली साइंस में फिलोसफी की क्या इंपॉर्टेंस है इस पैराग्राफ में वो बोला गया है। साइंस में अगर फिलोसफी ना हो तो भी काम नहीं चलेगा। जैसे गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर उनमें भी एक सोच ना हो, ठीक है, वो सिर्फ इंडिविजुअल सीकिंग करते रहेंगे तो उस गवर्नमेंट का भी अच्छा फ्यूचर नहीं होगा। वैसे just as a pursuit of knowledge becomes scholasticism मतलब it's a way of thinking, it's also a way, it's a pattern of philosophy जिसमें stubbornness एक बहुत important feature है। मतलब ढीठपना, जैसा सोचा वैसा है। और इसे दुनिया में काफी जगह पे नैरो माइंडेडनेस के हिसाब से भी देखा जाता है। ठीक है, just as the pursuit of knowledge becomes scholasticism when divorced from actual needs, मतलब actual needs के से आप उसको नहीं सोचते तब, needs of men and life, so the pursuit of politics becomes a destructive bedlam when divorced from science and philosophy. So basically एक देश को चलाने के लिए, एक political institution को चलाने के लिए साइंस भी चाहिए, फिलोसफी भी चाहिए। ओके, which one of the following statements best reflects the most rational, logical, and practical message conveyed by the passage? Modern statesmen need to be well trained in scientific methods and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles, responsibilities, and goals. This is not written and this is not possible. जो politics में है, जो representative है, उसको scientific methods भी जानना होगा, ये जरूरी नहीं है। It is not desirable to have government managed by empirical statesmen unless well mixed. Empirical statesmen मतलब इमोशन थोड़े से कम। ऐसे स्टेट्समैन रहना तब तक अच्छा नहीं है जब तक दे आर वेल मिक्स्ड विथ अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन लर्निंग, जो सीखना चाहते हैं, एंड रिफ्लेक्ट विजडम, जिसमें विजडम भी हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ तो गवर्नमेंट चलेगी। ये पॉइंट सही हो सकता है। As the statesmen or bureaucrats are the products of the society, it is desirable to have a system of education in a society that focuses on training its citizens in scientific method and philosophical thinking from very early age. वेरी अर्ली एज में आप कैसे किसी को साइंटिफिक मेथड और फिलोसॉफिकल थिंकिंग समझा सकते हो, आप अच्छी सीख दे सकते हो। प्लस वेरी अर्ली एज का कौन सा एज वो भी नहीं लिखा है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और सिर्फ अगर सोसाइटी में यही चलेगा तो कॉमर्स कौन देखेगा, बिजनेस कौन देखेगा? सो इस तरह का एजम्पशन हम नहीं बना सकते। It is desirable that all scientists need to be philosophers as well to make their work goal-oriented and thus purposeful and useful to the society. Scientists को philosophers भी होना पड़ेगा ताकि उनका काम एक goal oriented हो और उसका एक purpose हो। ये होना चाहिए, but
ऐसा हमें जरूरी नहीं है कि यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे साइंस और गवर्नमेंट का मिक्स के बारे में बोला गया है। सो ये पॉइंट इज नॉट नेसेसरीली करेक्ट, ये भी गलत, ये वाला सही होगा। It is not desirable to have governments managed by empirical statements unless well mixed with others who are grounded in learning and reflect wisdom. This is the correct answer. Okay, next slide. This one. Household finance in India is unique. We have a tendency to invest heavily in physical assets such as gold and property. Steps to encourage the financialization of savings is critical. Accounts में a populace accustomed to traditional processes will not simply jump into financialization. मतलब एक population जिसमें ट्रेडिशनल प्रोसेसेस चल रहा है उसको आप मॉडर्न फाइनेंशियलाइजेशन में मूव कराना उसको थोड़ा मुश्किल है। ट्रेडिशनल प्रोसेस मतलब सोना खरीदो, जमीन जायदाद खरीदो, ऐसे। हर्डल्स टू चेंज इंक्लूड वनरस ब्यूरोक्रेसी। अब वनरस ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी हमें पता है, वनरस मतलब एकदम मतलब नॉट विलिंग टू डू, भारी भरकम जिम्मेदारियों वाला काम, परिवार की जिम्मेदारी एंड ऑल, ठीक है, हमारी परंपरा कैसी चल रही है, इस तरह की बातें। हर्डल्स टू चेंज इंक्लूड वनरस ब्यूरोक्रेसी, a skepticism of organized financial institutions. Organized financial institutions पे skepticism मतलब संदेह करना, a lack of basic information about which of the myriad services and providers is best for each family. मतलब इतने सारे myriad services, जो इतने सारे टाइप्स के सर्विसेज हैं और जो प्रोवाइडर्स हैं उनमें से उनका बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है लोगों के पास, और वो एक फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये जान पाना, एंड हाउ वन कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन देम इफ नेसेसरी। इतने सारे सर्विसेज हैं, कौन सा उनके लिए सही है और जरूरत पड़ी कैन दे चेंज इन बिटवीन, क्या वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, इसके बारे में जो एक स्केप्टिसिज्म है, एक डर है, इसकी वजह से लोग ट्रेडिशनल प्रोसेसेस को छोड़कर इस मॉडर्न फाइनेंशियलाइजेशन में जंप करना पसंद नहीं करते हैं। Regarding the financialization of household savings, which of the following statements best reflect the solutions that are implied by the passage? A flexible environment is needed to develop solutions. Flexible environment, ताकि आप चाहे तो अपने options को change कर सकें। दूसरा, household need customized solution. हर घर, इंडिया में हर घर की प्रॉब्लम अलग है, सबको आप कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन दो। ओके, ये भी राइट है, ये दोनों पॉइंट्स करेक्ट हो सकते हैं। इनोवेशंस इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड। इनोवेशंस और नहीं चाहिए, मीरियड हमारे पास ऑलरेडी है, बहुत सारे, वी ऑलरेडी हैव अ लॉट, अभी और इनोवेशंस नहीं चाहिए। जरूरी है कि हम उसे फैमिली टू फैमिली कस्टमाइज करके भेजें और वो फ्लेक्सिबल हो। सो 1 and 2 will be correct. Select the correct answer. 1 and 2 only. ये ही करेक्ट। ओके, सो इस तरह से हमने आज आरसी सेक्शन में से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये हमारा पार्ट 2 आज खत्म होता है। सिमिलरली अगर आपको दूसरे किसी सेक्शन में, बी इट रीजनिंग सेक्शन, आरसी सेक्शन, आपको करंट अफेयर्स में कोई डाउट्स हो या कुछ भी हो, इकोनॉमिक्स में कोई डाउट्स हो, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्स्ट, जियोग्राफी, ह्यूमैनिटीज के किसी भी पार्ट में कोई डाउट्स हो तो आप हमें नीचे चैट बॉक्स पे एड्रेस कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस और इवन कॉल। हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस कोलकाता में कैरी ऑन हो रहे हैं इन हाजरा रोड, आप हमें इनके लिए भी चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।